Hey guys, welcome back to my channel. This is Priyanka Chida. So this is my sister Hello everyone. Priya. So we are going to do a chit chat session related to our family, like current situations and all. Okay. It will be a video about how we have progressed from gradually what all we have experienced in our life from childhood till now. So that's all will be this video about. And I have made a question answer list, like not answers basically, question list. Answers is not like question list over here. That we are going to ask each other. Without further ado, let's get into the video. So first of all, how is the life going on? Like I'm preparing for my examination. I was working and I have been at home since 1 month. And what's about you? And currently my exams are going on and only one exam is left on 7th of June. So after that my training of teaching will start. Let's see how it goes on. So you will be turning 25 this month. Yeah. How are you feeling? So it's going to be a very big milestone for you turning 25. When I turned 25, I know how I felt at that time. Now I want to hear what she's feeling. It's kind of a mixed feeling for me. Like I am nervous also. I am excited. Mostly the nervousness is about career, relationships and all. So देखो कैसा 25th जो है उसके बाद कैसे years जो है वो जाएंगे. नहीं, अपना थोड़ा एक्सप्लेन करो करियर में क्या मतलब तुम्हें क्या सबसे ज़्यादा कैसा लग रहा है क्या. Currently I am focusing on teaching as well as YouTube भी मैंने start किया है. So उससे अब देखते हैं कि किस तरह से ये channel जाएगा. अगर grow होगा तो it's well and good. Otherwise नहीं भी we'll keep making videos like for fun. मेमोरीज में रहेगा. हाँ, हमारी मेमोरीज में ही रहेगा कि what we used to do. अब आगे जाके गोलू के बच्चों को दिखाना भी तो है कि हम क्या करते थे. कुछ नहीं. Okay. Do you have any insecurities like in today's time? हाँ. Firstly, I have put on some weight. So उससे related भी I have this big round face. So I have to do these face framing cuts and all to make my face slim. तुम्हें कुशन सिंड्रोम तो नहीं हो रहा? और ऐसा तो इतनी नहीं ऐसे. हाँ, और कोई आपको लगती है इनसिक्योरिटीज? मतलब पहले कोई इनसिक्योरिटीज हो, अब तुझे लग रहा है कि टाइम के साथ वो पहले ना मैं वो वीडियोस देखती थी कि हाउ टू पुट ऑन वेट, हाउ टू गेन वेट ये, और अब मेरे को देखनी पड़ती है कि हाउ टू लूज वेट. सो इन शॉर्ट कि बंदा ना कभी भी अपने आप से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता. जितना मर्जी उसको मिल जाए वो फिर भी उसको रहता है कि वी नीड टू अचीव समथिंग एल्स नाउ. बट शायद वो भी जिंदगी में चाहिए रहती है चीज़. हाँ, बट फिर भी अगर वो भाई सेट हो जाएंगे तो वो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा वो रह जाएगा ना. पर हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए. कंटेंट होना चाहिए अपनी लाइफ से. बट ये है कि वी हैव टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू इन आवर लाइफ. हाँ, वो तो ठीक है, बट हमें अपने आप को सेटिस्फाई तो रहना चाहिए जितना भी जो हमारे पास है. हाँ, कंटेंट. हाँ. अच्छा. Have you your relationship has changed with our parents? मेरा तो ना स्टार्टिंग से ऐसा ही है पेरेंट्स के साथ भी, बिकॉज आई एम द मिडल वन और आई एम वेरी अटैच विद माई मदर एज फादर एज वेल. मदर से ज़्यादा थोड़ा तो, क्योंकि मेरी बहन भी चली गई थी वहाँ हॉस्टल में और मेरा भाई भी हॉस्टल वगैरह में था. तो ज़्यादातर मैं ही घर पे थी तो ज़्यादा मेरी अटैचमेंट है मम्मा से. और ये लोग चिढ़ते हैं जब भी कोई बात है, ये तो आपकी बेटी है, आप ऐसा करते हो, आप इसके लिए ऐसा करते हो. व्हाट अबाउट यू?
कान में चीख रही है. तो पहले like in childhood I was not like I never used to share my feelings or whatever is happening in my life with my parents. And then after like reality check hit me in the hostel, like I should share more with my parents. Like I have started sharing more with my mom. I was the kind of child, I was very pampered. I never felt like I never had any problem in my life as such. And then I was bombarded with so many situations in my life, and I was like, what the fuck is happening in my life? So my next question for you is about your insecurities. 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 Are you dealing with any insecurity right now? No, I'm not. Okay. And what about your past? Oh, sorry. Past में insecurities तो as such weight से related ही होती थी. मेरे को लगता कि I was very Underweight. not very underweight. I was underweight. मेरा BMI तब 17 होता था, 17.1 something. Same ही है हमारा ना, एकदम से gain हुआ. हाँ. तो बस वही insecurity होती थी, और मेरे को कोई insecurity है ही नहीं life. Your question. And next, अच्छा, who are you closest to in a family? कि जिसको तो सब कुछ बताती है without झिझक. मम्मा के साथ भी क्लोज हो, पर नहीं. मम्मा के साथ कई चीजें जो है वो नहीं शेयर की जाती बिकॉज हमारा एज गैप 2 years का है. तो इतना मतलब इस ये भी उसी एज से गई है. सो आई शेयर एवरीथिंग विद हर. हाँ, और मेरे को वैसे भी हमारी ना बहुत अच्छी वो है टेलीपैथी ना. मेरे को पता चल जाता है इसको क्या हो रहा है क्या नहीं. वैसे भी आई हैव बीन थ्रू ऑल What about दिस, सो आई you? नो. आई एम वेरी क्लोज टू माई सेल्फ. अच्छा, तो अपने आप को बताती सब कुछ. हाँ, अगर मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइक ओवर माई हेड जा रहा है कुछ भी, तो मैं ऐसे बता. Next question is, have you stalked anyone on social media? Stalked as in stalker syndrome वाला stalk. Stalk as in like ID बनाना, नई नई ID बनाना, या अपनी ID से किसी को stalk करते रहना. Like, उनके followers check करना, what they are doing. Just what you were saying. हाँ. Everyone has phases in their life. I had a phase as well. अलग-अलग IDs नहीं बनाती थी, but obsessed हो जाते हैं ना जिंदगी में, ऐसे obsessed किसी चीज़ से या ऐसे किसी इंसान से, किसी चीज़ से. तो था वो फेज लाइफ में अपनी. I was naive back then, but I'm not that much naive. I was very innocent. That's it. तुम्हें हुआ है कभी ऐसे, तुमने ऐसे स्टॉक किया हो? यू देखिए सीरीज तूने? नहीं. स्टॉक तो किया है, स्टॉक तो बहुत बार किया है. ये तो नॉर्मल सी चीज़ है. Normal. मैंने तो नई नई आईडीज बना, नहीं नई आईडीज नहीं, बट मेरे पास थी 1-2 आईडीज, तो उससे स्टॉक वगैरह करा है. सो आई थिंक सभी करते हैं स्टॉक तो. So what what's your plan about marriage? इसको मेरे से पूछना चाहिए, मैं पूछ रही हूँ इससे, क्योंकि इसको देख नहीं रहा उसमें क्या बोल. कोई भी प्लान नहीं है अभी तक तो. नहीं मतलब what kind of I'll be a telling life partner do you want? लाइफ पार्टनर की तो एक लिस्ट बन जाती है. बेसिकली जो सेम चीज वही सबकी होती है कि एक जेंटलमैन टाइप का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बच्चों जैसे कि अगर मैं उसको कुछ बोलूँ वो भी आगे से उतना ही ऐसे लड़ने लग जाए, या ऐसा वो थोड़ी मतलब चीज़ों को समझे. जैसा मैं मतलब आई एम काइंड ऑफ अ स्टबर्न चाइल्ड, ठीक है, तो वैसा सा वो नहीं होना चाहिए. तीनों के तीनों वैसा वो नहीं होना चाहिए. बस तुम्हारी ऐसे कुछ, तुम्हें ऐसा लगता है कोई कि क्या रेड फ्लैग्स हैं किसी लाइक मैन में? एग्रेशन, ऐसे छोटी छोटी बातों में ऐसे मतलब चिड़चिड़ापन जो होता है ना, आई हेट दैट थिंग. चिड़ी जाना छोटी सी चीज में. वो तू भी तो चिढ़ती है. ऐसा वाला नहीं, ये मतलब बहुत चिढ़ती है. एक पार्टनर वाले उसमें चिढ़ना, वैसा वाला तो बहुत गंदा है वो. और उसी से बहुत टॉक्सिसिटी भी आती है. और क्या लगता है तुम्हें, क्या रेड फ्लैग्स होता है? रेड फ्लैग्स तो बहुत होते हैं. अब जैसा बंदा होगा उसके हिसाब से रेड फ्लैग्स होंगे. नहीं मतलब तेरा क्या है? सो व्हाट अबाउट यू? व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड डू यू वांट? लाइक व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू आर लुकिंग फॉर?
So I want someone who understands me. Obviously, someone wants someone who understands them. मतलब ऐसे इशारे में समझ जाए कि मैं ऐसे इशारा कर रही हूँ तो वो समझ जाए कि हाँ ये है। और मेरे को ना आई फील लाइक आई एम अ डोमिनेटिंग पर्सन, तो आई वांट समवन हु इज अ काइंड ऑफ लिटिल सबमिसिव। लड़कियां डोमिनेटिंग ही होती हैं ज़्यादा शायद, नहीं पहले ज़माने में लड़के नहीं, होते आई हैं। कैन ऑल्सो बी सबमिसिव, बट अच्छा लड़का होना चाहिए। शिवलरी इज नॉट डेड, तो वैसा वाला शिवलरी चाहते हो ना, व्हेन यू नो योरसेल्फ व्हाट यू वांट व्हाट यू नॉट वांट, एंड तब तुम्हें ना वैसे ही मतलब ज़िंदगी में वैसे टाइप के इंसान मिलने लग जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो कोई तुम्हारे मेंटर्स हों या कोई भी ऐसा है ना, या चाहे तुम्हारे पार्टनर्स हो। तो पहले क्या होता था कि पहले ना ऐसे लाइफ में सब ऐसे ही मिलते थे लड़के थे ना, कि ज़्यादा अपने आप को स्टाइल मारना ये वो, मतलब ऐसे जेंटलमैन टाइप नहीं होते थे। जेंटलमैन इज ऑल्सो ऐसा टाइप टर्म, अब सब अपने आप को यही कहते हैं पर होते तो है नहीं। तो वो होता था कि मतलब शिवलरस नहीं होते थे। अब शिवलरी की बात चल रही है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले पास्ट में people like men used to feel like they used to boast about themselves, they never used to do things for another person, एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ है। बट अब जैसे टाइम्स हैव चेंज्ड, मेरे को अब लग रहा है कि 2 साल से ऐसा कुछ 2 ईयर से जैसे है ना, तो ऐसे मेरे को लाइफ में ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो मतलब मेरे लिए करते हैं चीज़ें, वरना आई ऑलवेज यूज टू बी द वन दैट यूज टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ फॉर एवरी अदर पर्सन। बट आई हैव मेट a lot of people in my 2 years tenure that are very like that have taught me that I also need to be pampered and all. So मेरे को तो अच्छे मिले हैं वही लोग कि जो मतलब मेरे को ऐसा लगता था यार कितने लड़के ऐसे फ्लावर्स देते हैं। मेरा इतना कुछ फ्रेंड सर्कल इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत लिमिटेड सा है, तो उस हिसाब से मैंने लाइक अपने फ्रेंड्स में भी इतना मतलब शिवलरी जेंटलमैन टाइप के लड़के नहीं देखे, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत क्लोज है और वो ये एक दो फ्रेंड्स ऐसे ही हैं। आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लोर मोर। हाँ, शी नीड्स टू एक्सप्लोर मोर। मेरे को भी ऐसा लगता था, आई यूज्ड टू बी वेरी नेगेटिव अबाउट थिंग्स, बट नाउ एज आई हैव ग्रोन अप आई थिंक दैट पीपल आर नॉट दैट मच like bad as we think, and there are people who do things for you, but it's just that you need to find someone who is willing to do anything and everything for you. ओके, उनको लगता है कि like everything is on their like on the click of your phone you can find everyone on your dating sites and इतनी all. सारी Dating sites are not that bad also, you can find your life partners over there so that's a good thing also. ओके, Perks और सब cons तो होते हैं सब चीज़ों में. so let's move on to another question. Okay, have you ever experienced betrayal because of your friends and instant what is this connections? Instant With connections people. ये 2 different चीज़ें हैं. हाँ. मतलब Firstly, friends group में you have to tell about betrayal. betrayal तो मतलब it's a very heavy topic. So like do you think random plans are best, or like planning for a trip is Spontaneous plans. spontaneous plans where पहली बात तो प्री प्लान जो प्लान्स होते हैं दे नेवर वर्क. ठीक है, हम सोच ही जाएंगे, हम लिख कर ही जाएंगे कि हाँ विल गो टू दिस प्लेस, विल डू दिस, बट दैट इंस्टेंट प्लान्स आर मच बेटर, बिकॉज उसमें एक तो थ्रिल सा भी होता है कि अब आगे क्या करें. but जो हमारे पेरेंट्स हैं ना थोड़े यार वो हमें बच्चे समझते हैं अभी भी कि हम छोटे बच्चे हैं. देखो मतलब जितने बच्चे ग्रो I'm कर I'm 26, I'll be turning 27 and लड़के ढूंढेंगे तभी तो शादी कराने का टाइम आएगा ना पास में. तो ये तो लड़के आजकल के पहले तो ऐसे ही मिलते थे, अब थोड़े ठीक, अगर तुम उनके साथ अपनी वो रखोगे ना इंटेंशन सही कि लाइक यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. ऐसा भी नहीं होता. कई लड़कियां जो है वो पहले अपनी इंटेंशंस बता देती हैं बट स्टिल पीपल चीट देम. हाँ, चीटिंग पता नहीं सबकी लाइफ में अपना मिलता होता होगा कोई एक पर्सन हाँ. जिसके साथ उसका कनेक्शन मिल जाए.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा. How was your college time? College time, I don't really miss my college. I do. सीधी सी बात है, I don't really miss my college. I don't like my college. मेरा जो BA वाला कॉलेज था दैट इज़ PGGC 11 चंडीगढ़. दैट वॉज रियली नाइस. सो वहाँ पे हमने बहुत लाइक क्लासेस तो कम ही लगाते थे हमेशा कैंटीन में या कैंटीन के पीछे जगह. जो PGGC वाले हैं वो जानते होंगे कि कैंटीन के पीछे जगह होती थी, वहाँ पे हम बैठ के बातें करते थे. और सीनियर्स भी काफ़ी वहाँ उस टाइम So all in all, she wants to say that she never used to go to classes. She used to bunk classes. I do. वो एक That's what you used to do. बैलेंस बना के रखते थे. बैलेंस. मैं बहुत शरीफ बच्चा था मेरे को लगता है. इंटर्नशिप में मैंने बहुत ऐश करी है. इंटर्नशिप में फिर मेरी इंटर्नशिप है उसका नाम, तो वी यूज्ड टू डू anything and everything that used to come to our mind. Very spontaneous instant plans we used to make back then. And बहुत कुछ किया. बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास. बहुत सारी स्टोरीज है. वो मतलब MBBS के जो ईयर थे ना बाकी पुराने, वो सब भूल जाऊंगी मैं एक वो इंटर्नशिप वाले ईयर के लिए. तो इंटर्नशिप वाला ईयर मेरे बेस्ट था. और फिर और मेरा MA वाला जो टाइम था ना जब मैंने मास्टर्स की साइकोलॉजी में है पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो कुछ मतलब कोरोना चल पड़ा था और फिर थोड़े टाइम हम गए थे. एक दो सेमेस्टर ही लगाया होगा. बहुत मतलब बोरिंग सब. बल्कि हमारा डिपार्टमेंट जो था वो स्टूसी के बिल्कुल सामने था और हमें इतना टाइम मिलता ही नहीं था कि हम स्टूसी जाएं. इतनी गर्मी होती थी, कुछ मज़ा नहीं आया मतलब मास्टर्स करते हुए. वो कहते हैं ना कि पीयू जाना इट्स जस्ट अ हाइप. कि पीयू जिसने अब जो घूम रहा है मज़े कर रहा है उसके लिए तो ठीक होगा, पर जिन्होंने थोड़ा पढ़ना भी है साथ में असाइनमेंट्स मिलती रहे ये वो, तो वहाँ उस टाइम कुछ मज़ा नहीं आता था. गेड़ी चेड़ी मारनी है ये वो ठीक है. मेरा जो अभी व्हेन आई वाज वर्किंग तब वो वाले तो ईयर्स मेरे बेस्ट ईयर्स थे. क्रिब करके मैंने निकाले, बट आई हैव felt each and every emotion in those years. Like, और ये तब कहती थी जान मेरे को यहाँ से ले जो मैंने नहीं यहाँ पे रहना. जब पहली बार गई ना कि charm for that hospital. मेरे हॉस्पिटल वाले अगर देखेंगे तो you guys know I was what like she's saying. डायरेक्टर सर अगर देखेंगे तो कहेंगे So okay, we don't have to stretch it aloud. अच्छा मेरे तो पूछे थे रेड फ्लैग्स. अच्छा हाँ चल अपने रेड फ्लैग्स बता दो. मेरे रेड फ्लैग्स, मैं अपने रेड फ्लैग्स बताऊँ. मेरे रेड फ्लैग्स क्या है तेरे? हाँ सबके होते हैं. एवरीवन इज टॉक्सिक किसी ना किसी चीज़ में. तो मेरा रेड फ्लैग फिर मैं बताऊंगी मेरे को क्या लगते हैं रेड फ्लैग्स. और पहले मैं अपना बताऊंगी मेरे क्या रेड फ्लैग्स हैं. मेरे रेड फ्लैग्स हैं ये है कि आई ओवरथिंक अ लॉट. मैं ना पहले फ्यूचर का ही सोच लेती हूँ. कोई कुछ गलती कर देता है उसमें. अभी ओवरथिंक अ लॉट. लाइक अब जो मेरे ये यूट्यूब का चैनल है ना इसमें मेरे को जब कंटेंट बनाना हो तो मेरे सिर दर्द होने लगता है. अभी भी हो रहा है. चलो छोड़ो, पर मैं ना एक्सपेक्टेशंस लोगों से रख लेती हूँ बहुत ज़्यादा और फिर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर पाते हैं. देन आई थिंक यार ये क्या हरकत है, सब मेरे को ऐसे ही मिल रहे हैं, ये है वो है. बट हमें ये भी देखना चाहिए कि मैं थोड़ा मैं वो भूल जाती हूँ, सुपर सीड हो जाता है मेरे दिमाग से कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो कर ही रही है जो उसको थोड़ा ग्रेटफुल रहो ज़िंदगी में. So guys, we are ending this video here. If you guys like this video, make sure to like our video, subscribe to my channel and do share as well as do comment also. So मिलते हैं अगली वीडियो में. Bye bye. Bye.